you would be enlightened by Mr. Ankit Majmudar on the subject of export opportunities in the Gulf and cooperation countries, that is GCC. Correct? So we'll start with, I will introduce Mr. Ankit Majmudar, then sir will take over, then there will be a question answer session for 5 to 10 minutes, around about at 7:25 to 7:35, or as time it take, and then we will disperse. Correct? So I'll just give you a brief about Mr. Ankit Majmudar. Mr. Ankit Majmudar is a founder of Global Business Solution, and he assists to his clients in explore global opportunities by providing international business consulting to the to the startups and MSME for selecting markets, finding buyers, suppliers, and executing all the export and import activities. He is currently consulting to the clients in heavy machinery, engineering products, home furnishing, ceramics, tiles, as well as chemical and various other products. Mr. Ankit has traveled across 20 plus countries across Europe, South America, Africa, and Southeast Asia. He has managed the international trade fair and exhibition in several countries for various industries. Mr. Ankit has hands-on experience in managing business through B2C and B2B models. His expertise lies in developing and managing the ecosystem for the pre-shipment and post-shipment export activities. He is associated with the Ahmedabad Management Association, AMA, MSME, as well as International Institute of Import-Export Management and other institutes to train and mentor the entrepreneurs in international business. Mr. Ankit is also associated with MBA Institute, that is Gujarat Technological Institute, as a guest faculty for delivering the sessions on international business. He holds Master of Commerce, MCOM, and Master of Business Administration, that is MBA degree in marketing. Let us give a big clap to Mr. Ankit. Now I won't take much of time between you and Mr. Ankit Majmudar. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो आज हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन जो है, 6 कंट्रीज का इनका कोऑपरेशन है, उसमें कहाँ कैसे फोकस करना है और हम उसको कंट्रीज में कौन सी प्रोडक्ट्स जाती हैं, बायस का थोड़ा बहुत समझेंगे कैसे होता है, मेजर एक्सपोर्ट्स इंडिया से कितना होता है, कितने प्रोडक्ट्स का ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू गल्फ कंट्रीज, पेमेंट टर्म्स का सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं कभी कभी जब आप यूएई वगैरह की कंट्रीज के साथ डील करते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए कैसे हम लोग कॉशियस रह सकते हैं, तो 2-3 तरीके उसके दिखाऊंगा और देन वी विल टेक इट द क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट द प्रेजेंटेशन. सो सिग्निफिकेंस हम ये 4-5 चीज़ों पे बात करेंगे थोड़ा बहुत. ये देखें 6 कंट्रीज जहाँ पे सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत एंड ओमान, दिस 6 कंट्रीज का जो कोऑपरेशन है जिसको हम कस्टम्स कोऑपरेशन भी बोलते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री का कोऑपरेशन है, मर्कोसुर में 5 कंट्रीज है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे वगैरह, वो सब का कोऑपरेशन है. सो ये कोऑपरेशन क्यों करती है, ये रीजन बेस्ड है. जिस रीजन में ज्योग्राफिकली कनेक्टेड जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में एक करार करती हैं, जहां पे एक कंट्री से बाजू के कंट्रीज में अगर चीजें जाती हैं तो दैट एसेंशियली गोज एट 0% इंपोर्ट ड्यूटीज. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर इंडिया सऊदी को कुछ एक्सपोर्ट करता है तो सऊदी में आपका इंपोर्टर विल बी पेइंग 5 to 10% इंपोर्ट ड्यूटीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स कैटेगरी. लेकिन वही चीज अगर यूएई या बहरीन से वहां पे जाती है, so it will have 0% duties in that particular country. So ये कोऑपरेशन करते हैं. क्यों करते हैं, तो इंक्रीज दी ट्रेड, और क्योंकि जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर आता है इसलिए ऐसी कंट्रीज आपस में जुड़ती है, राइट. दैट इज अ फंडा. सो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है. सो रादर देन टेकिंग एन इंडिविजुअल कंट्री, यूएई, सऊदी, हम लोग एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का आज के तारीख में फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो जनरल स्ट्रेटेजी होगा वो एक होगा, क्योंकि जब भी आप इनमें से कोई भी एक कंट्रीज में एक्सपोर्ट करोगे एक्सेप्ट यूएई, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज वुड बी वर्किंग इन अ वेरी सिमिलर पैटर्न. सो सऊदी में करते हो 5% है, बहरीन में करते हो 5% है, एक्सेप्ट यूएई, क्योंकि इंडिया का यूएई के साथ करार हो चुका है, जो हम लोगों ने काफी सेशंस में ये सीखे हैं. मई 2020 में एफटीए हुआ है. सो एफटीए का इंपैक्ट क्या आता है वो भी थोड़ा ब्रीफली मैं एक स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि उसका हार्ड कोर इंपैक्ट क्या होता है इंपोर्ट कंट्रीज पे. उसके लिए लैंडिंग कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाती है, और आपके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है. दिस इज द रोल ऑफ एफटीए, और इसलिए कंट्री आपस में कोऑपरेट करती है.
ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जहां पे काफी 20 अलग अलग किस्म के रीजन्स में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है। अब ये डिवीजन इसलिए ताकि हर एक बंदा, हर एक एक्सपोर्टर, हर एक एंटरप्रेन्योर एक फोकस कर सके कि मैंने किस रीजन पे फोकस करना है, क्योंकि हर कंट्रीज में तुम फोकस नहीं कर सकते। देयर आर 220 कंट्रीज, तो तुम फोकस कैसे करोगे? यू विल बी लॉस्ट समवेयर इफ यू हैव एटलीस्ट स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स और कॉलिंग समवन। तो ये 20 कंट्रीज का यहाँ पे पूरा एक ताना बाना बताया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे येलो में मार्क किया है, विच इज नोन एज वेस्ट एशिया या जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। इंडिया का अगर $100 एक्सपोर्ट करता है पूरे साल में पूरे विश्व को, तो जीसीसी कंट्री का जो 6 कंट्री का जो कोऑपरेशन है उसमें $12.9 का करता है, मतलब $13। सो 13% कंट्रीब्यूशन है वो जीसीसी का है। उसके ऊपर कौन सी कंट्री सेगमेंट का है आप यहां पे देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस वगैरह 19%, ऑलमोस्ट 20%। उसके बाद ईयू, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में पूरे साल में वो 18% है। सो आफ्टर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, जो सबसे बड़ी तादाद में इंडिया कहीं पे एक्सपोर्ट करता है जिस रीजन में पूरे जहां में, दैट इज जीसीसी। और इसलिए आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं कि उसकी अहमियत को समझने के लिए क्यों उस पर फोकस करना चाहिए। देयर आर 3-4 बड़ा बड़ा रीजंस, मैं आपको यहां पे क्विकली समझाऊंगा कि क्यों उसको फोकस करना चाहिए, राइट। सो इंडियन डायस्पोरा, सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएई की पॉपुलेशन जो भी है उसमें से 38% पॉपुलेशन इंडियंस है। सो इंडियन डायस्पोरा अपने को काफी बड़ी उस पे मिल जाएगा, राइट। सो देयर आर अराउंड 34 lakhs इंडियंस एज ऑन डेट स्टेइंग इन यूएई। This is perhaps one of the biggest reason why we are likely to focus on GCC countries with what all products we have. हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स जाते हैं। मैं आपको एक एक कंट्री, 6 कंट्री में कौन से टॉप 10 प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे दिखा दूंगा। सो जिनको एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, उनको कोई करने की जरूरत नहीं है। यू टेक ए स्नैपशॉट, दैट विल परहैप्स वर्क फॉर यू, है ना। सेकंड इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। कितने इंडियंस है वहां पे? अराउंड 25 lakhs। जैसे 10 lakhs, 7 lakhs, 7.5 लाख, बहरीन में 3.5 लाख। This is what Indian diaspora in each of the 6 countries of GCC, correct? दूसरा, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। जीसीसी क्यों करना चाहिए? आपने तो बताया कि नॉर्थ अमेरिका में तो यार 20% कंट्रीब्यूशन है, यूरोपियन यूनियन में तो कंट्रीब्यूशन करीबन 17% है, जीसीसी का कंट्रीब्यूशन महज 13% है, थर्ड लार्जेस्ट है। लेकिन फोकस क्यों करना है? स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। आप ज्योग्राफिकली देखेंगे, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 कंट्रीज का जो मेजर पॉर्ट है उसका बता दिया है, और वहां मुंद्रा से या जेएनपीटी से पहुंचते कितना वक्त लगता है वो भी बता दिया है। यू नीड नॉट कि लॉजिस्टिक्स क्या होगा क्या नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। सो नंबर 1, मुंद्रा से जेबल अली यूएई कनेक्ट करते हो, 4 दिन में आपका कंटेनर पहुंच जाता है 20 फीट 40 फीट। एज्यूमिंग दैट यू आर सेलिंग इन यू आर एक्सपोर्टिंग इन ए बल्क, है ना। मैं एलसीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेस देन कंटेनर लोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय एयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाय एयर तो अगर यूएस भी भेजते हो 24 घंटे में पहुंच, लेकिन 20 टन एयर से नहीं जाएगा, वो तो कंटेनर से जाएगा। सो कंसिडरिंग दैट आई हैव कंसिडर एंड एज्यूम के यहाँ पे हम लोग बड़े कंटेनर्स बल्क की बात करते हैं। सेकंड इज दम्मम पोर्ट, जहां पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का है। आप देखें यहाँ पे 6 दिन में पहुंच जाता है। सिमिलरली पोर्ट सुल्तान काबूस ओमान 3 दिन, कुवैत में शुवैक पोर्ट है 6 days, दोहा कतर 6 days, बहरीन का मुबारक पोर्ट 5 days। सो नॉट मोर देन 5-6 days इन एनी ऑफ दिस कंट्रीज। इसलिए क्योंकि हम ज्योग्राफिकली कनेक्टेड, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव लार्ज इंडियन पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल दिस 6 कंट्रीज। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे बिजनेस आप कर पाओगे, करोगे, सक्सेसफुल होगे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिजनेस एंड गेटिंग लीड्स, मीटिंग पीपल, टेकिंग अपॉइंटमेंट्स बिकम्स वेरी इजी कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मेरा बड़ा कहने का आइडिया ये है। अब मैंने यहाँ पे एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का आइडिया दिया, आज का डेटा है। 40 फीट कंटेनर जब इंडिया से जेबल अली का बुक करते हो आज की तारीख में, इट इज $750 बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस, वी ऑल नो। पिछले 2 महीने पहले यही रेट $450 हुआ करता था, 450-500 के बीच में ये घूमता था। करंटली इट इज $750। मैंने आज का रेट कंसिडर किया है फॉर 40 फीट कंटेनर। अब देखें यहाँ पे 40 फीट कंटेनर का $750 पकड़ के मैं चल रहा हूँ, 83 रुपीज में कन्वर्ट करके, डेट कम्स अराउंड 60,000 रुपीज मोटा, ठीक है। 40 टन आप 40 फीट कंटेनर में डाल के भेजते हो,
इसका खर्चा 60,000 हो गया। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से आईसीडी साबरमती या आईसीडी अहमदाबाद खोडियार, वहां से मुंद्रा, प्लस योर कस्टम क्लियरेंस प्लस डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चार्जेस हो गए यहाँ पे, डेट कम्स टू अराउंड 75,000। ये भी आज का डेटा है, ये कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज ही CHA से बात किया, फॉरवर्डिंग एजेंट से, मुझे ये बताया कि तो ये मोटा मोटा इतना चलता है, अभी इतना पकड़ के चले, राइट। सो 75,000 प्लस 60 दैट कम्स टू 135,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 टन्स, मैंने मैक्सिमम पकड़ के चलता हूँ, 35 से 37 टन आते हैं, मैं 40 टन पकड़ के चलता हूँ। सो पर यूनिट कॉस्ट कम टू ₹3.40, या 3.5 मोटा मोटा पकड़ लो, या 4 पकड़ लो, उससे ज्यादा नहीं होना है, अरे मैं तो 5 पकड़ लो, चलो उससे ज्यादा नहीं होना है टू एनी ऑफ दिस 6 कंट्रीज मोटा मोटा। तो दैट इज द आइडिया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मैं कुछ भेज रहा हूं या क्यूमिन सीड भेज रहा हूं या कुछ मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स भेज रहा हूं, तो उसका खर्चा कितना आएगा, इट वोंट बी मोर देन ₹5 पर किलो डिवाइडेड बाय 83 टू कन्वर्ट इनटू डॉलर्स, तो मतलब नॉमिनल अमाउंट आएगा। वो आइडिया देने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली पास में है, ट्रांजिट टाइम कम है और पर यूनिट कॉस्ट भी आपका कम आता है, इसलिए एग्जांपल यहाँ पे समझा है, राइट। सो you guys understand what all are the transportation logistics cost I should consider before calculating my prices। तो सामने वाला पूछेगा give me CIF जेबलली प्राइस, अभी ये होमवर्क नहीं किया है तो CIF कहाँ से दोगे, तो इसलिए वो कैलकुलेशन में दिया हुआ है। लेट अस टेक इट फर्दर, आगे क्या है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस GCC का इंडिया से 22, 23, 23, 24 में हर एक मुल्क में वहां पे जो 6 कंट्रीज है वहां पे इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है, और यहां पे मैंने परसेंटेज बताया है कि आपका परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, मतलब अगर $100 GCC में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है लास्ट ईयर, UAE ने $63 का मटेरियल इंपोर्ट किया है। सो मेन मार्केट इन GCC इफ यू स्टिल वांट टू फोकस, एक तो हमने 220 कंट्रीज में से 20 रीजन को अलग कर दिए, उसमें से नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन GCC। अगेन GCC में अगर सबसे बड़ा बिजनेस जहां से आता है, यहां पे परहैप्स सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, दैट इज ऑफ कोर्स UAE फॉलोड बाय सऊदी। सो 63 प्लस 21 कम्स टू अराउंड 84-85%, 85%। तो ये 6 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज पे फोकस करूंगा, मेरा काम हो जाएगा मोटा मोटा, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स भी दिखा देता हूं कि हर एक 6 कंट्रीज में टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, करेक्ट। तो यहां पे आप देखेंगे कि लास्ट ईयर GCC का जो परसेंटेज था इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में, इट वाज 11%, यहां पे मेंशन किया हुआ है। दिस ईयर इट हैज इंक्रीज बाय 13%। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ UAE इट हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, 2,53 करोड़ से 2,95,000 करोड़ पहुंचा है, बिकॉज ऑफ ट्रीटी। परफेक्ट, ट्रीटी की वजह से, क्योंकि पहले जब कभी इंडिया से प्रोडक्ट्स जाती थी तब वो 5%, 10% में जाती थी, अब वही प्रोडक्ट्स आप 0% पे कर रहे हो। ये सरकार को पता है, इसलिए FTA कर रही है। दैट इज द लॉजिक के ये लोग क्यों FTA कर रहे हैं, क्योंकि नया टर्म नहीं है, पुराना टर्म है, लेकिन आज गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये सब कंट्रीज में हो। अच्छा, आउट ऑफ 6 कंट्रीज इन GCC, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ओनली विद 1 कंट्री, दैट इज UAE। ओमान के साथ अभी फिलहाल हो जाएगा, 1-2 महीने का सवाल है, उसके अंदर ये हो जाएगा। सो 2 कंट्रीज वी वुड बी कवरिंग, एंड देन परहैप्स बाकी के जो 4 कंट्री रही वो शायद मार्च 2025 तक गवर्नमेंट का ये एक एजेंडा है कि पूरे GCC को हम कवर करेंगे। सो GCC में आप कहीं पे भी बेचो, योर प्रोडक्ट विल गो विद 0% ड्यूटीज, योर कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज, एंड परहैप्स सामने वाले के लिए लैंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, एंड दैट इज द आइडिया, करेक्ट। ये देखें, मैंने ये येलो मार्क क्यों क्या समझाता हूं, पहले तो ये समझे कि कौन से टॉप प्रोडक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप UAE पकड़ते हैं, सऊदी पकड़ते हैं, ओमान पकड़ते हैं, 6 कंट्रीज मैंने 3-3 चीजों में डिवाइड कर दी, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट फॉर श्योर। ये येलो मैंने इसलिए की क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट कैटेगरी तीनों कंट्री में कॉमन है। अगर आप मिनरल फ्यूल्स ऑयल देखते हैं तो UAE में नंबर 1 है, वही मिनरल फ्यूल्स सऊदी में नंबर 1 है, वही मिनरल फ्यूल्स ओमान में भी नंबर 1 है। अब मुझे नहीं पता आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मिनरल फ्यूल्स के डेरिवेटिव्स है, ऑयल एंड पेट्रोल के डेरिवेटिव्स है, उसके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो आप क्या बेचते हो, कैस्टर ऑयल बेचते हो, मुझे नहीं पता क्या बेचते हो, बट देन दिस इज परहैप्स द प्रोडक्ट कैटेगरीज व्हिच यू कैन फोकस अपॉन। सेकंडली पल्स वगैरह में मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखता हूं, UAE में ये 3rd नंबर पे है, सिमिलरली यहां पे भी है, और यहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ओमान में भी मिलेंगे। सिमिलरली सीरियल्स यहां पे मिलेंगे, सीरियल्स 2nd नंबर पे मिलेंगे, सीरियल्स आपको ओमान में 5वें नंबर पे मिलेंगे। सो मैंने जो येलो मार्क किया है वो तो प्रोडक्ट दमदारी है,
वो प्रोडक्ट तो जाता ही है। वो स्टैटिस्टिक्स भी कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये चीजें बड़ी तादाद में, बड़ी वैल्यू में, बड़ी क्वांटिटी में जाती है। सो जो लोग नए हैं इस फील्ड में, या जो लोग प्रोडक्ट्स कभी कभी पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स कौन सी करनी चाहिए, तो दिस कैन परहैप्स थ्रो सम लाइट कि यार मैं ये कुछ प्रोडक्ट्स के आजू बाजू खेलूंगा तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ माई विनिंग दैट गेम विल इंक्रीज। यानी का तो बिजनेस आएगा नहीं आएगा, आई विश आई प्रे कि बिजनेस सबका हो, सबका एक्सपोर्ट हो, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस है कि दिस प्रोडक्ट्स यू कैन परहैप्स सिलेक्ट, यू कैन फोकस अपॉन। और जिनका मैन्युफैक्चरिंग का कुछ है या कारोबार ऑलरेडी है, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में कुछ कर रहे हो, मर्चेंट एक्सपोर्ट में आप 5 प्रोडक्ट लेके बैठे हो, तो ये 6th 7th आप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट टू फोकस जीसीसी मार्केट। दिस इज द आइडिया, कैसे उसके साथ प्रोडक्ट के साथ हम कैसे लेवरेज करके वो कंट्रीज में हम कुछ बेच पाएंगे, राइट। सिमिलरली आप नीचे देखो ऑर्गेनिक केमिकल्स, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल्स और यहाँ पे ऑर्गेनिक, तो तीनों मुल्क में ऑर्गेनिक केमिकल्स हो जाते हैं। अब यूएई और सऊदी का कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीसीसी एक्सपोर्ट इज 84%, मैंने बता दिया। अगर आप ऑर्गेनिक केमिकल्स का कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 2500 प्रोडक्ट आते हैं। एक तो हो गया इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिकल्स, तीसरा हो गया स्पेशलिटी केमिकल्स। ये सब अलग अलग उसके ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए ज्यादा मार्केट नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कहता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल्स में कुछ आप प्रोडक्ट से कुछ ताल्लुकात रखते हो या कुछ बनाते हो, कुछ ट्रेडिंग करते हो, देन 3 मार्केट्स आर ओपन फॉर यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ये पहले ही था लेकिन आज मैंने आपको बता दिया। So for you, UAE, Saudi and Oman are perfect market if you are into this kind of product categories. Clear? Second, अब और 3 कंट्रीज ले लो, कुवैत, कतर एंड बहरीन। यहां पर मैंने फिर से येलो मार्क किया है। सो मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिलेटेड प्रोडक्ट। अब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से शायद ताल्लुकात ना रखिए, अपने लिए नहीं है, लेकिन जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, गवर्नमेंट या डिफेंस वगैरह में कुछ काम करते हैं, ये उनके लिए। पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, पहले उसमें भी था 3 कंट्रीज में, यहां पे भी है। अगर व्हीकल्स एंड अदर रेलवे, ट्रैमवे, ये तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे कॉमन है। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी देखो ऑर्गेनिक केमिकल्स है, यहाँ पे भी सीरियल्स है, आगे की 3 कंट्रीज में भी सीरियल्स आते थे। सो आप समझ लें कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट से लेकर सीरियल्स तक अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप दैट। ये नहीं है कि यार मेरा इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरी कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, जड़ी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या सीरियल्स भी बेच सकते हो, ये जाती है वहां पे सीरियल्स, राइट। सो दिस इज, ये देखो छोटी सी चीजें, कॉफी वगैरह जाती है, कॉफी, टी, स्पाइसेस वगैरह भी चीजें जाती है। प्लास्टिक्स भी यहाँ पे जाता है, यहाँ पे भी प्लास्टिक्स है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील है। दिस इज हाउ यू सिलेक्ट योर प्रोडक्ट इफ यू वांट टू फोकस ऑन दीज मार्केट्स, करेक्ट। अब देखते हैं इंडिया जीसीसी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो मैंने जिक्र किया था, यहां पे मैंने डेटा के साथ बता रहा हूं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। हमने ड्यूटीज खत्म कर दी, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए 0% ड्यूटीज कर दी। यूएई का आप देखें डेटा यहां पे 209 मतलब 2 लाख करोड़ से 2,53 करोड़ हुआ, क्योंकि ये मई 2022 में हुआ था। मतलब इसका इंपैक्ट देखें सीधा 21% इन जस्ट 1 ईयर, नॉट इवन 1 ईयर, क्योंकि अप्रैल तो निकाल दो आप, मई में एंड में हुआ, 2 महीने निकाल दो, 10 महीने में इट हैज इंक्रीज बाय 21%, शार्प इंक्रीज। सिमिलरली हमको ये था कि यार ये पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, इस साल तो शायद 20% इंक्रीज हो गया, अगले साल पता नहीं सीधा डाउनवर्ड आएगा, वी डोंट नो, है ना, वो डाउट्स होते हैं ना जहन में। ये देखें अनदर 23-24 इट हैज अगेन इंक्रीज बाय 16%, और ये 16% इसके ऊपर हुआ है, इसके ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ 21-22 में, 22-23 के ऊपर और 16% बढ़ा है। सो 21-22 में से लेके 35% इंक्रीज हुआ है। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ एफटीए। इससे सरकार बोलती है चिल्ला चिल्ला के एफटीए इज द नीड ऑफ एन आवर इफ इंडिया हैज टू सक्सीड इन इस ओवरऑल जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ख्वाब लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें से करीबन 1-2 ट्रिलियन वुड बी कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, स्प्लिट 1 ट्रिलियन फ्रॉम द गुड्स कार्गो प्रोडक्ट्स एंड 1 ट्रिलियन फ्रॉम सर्विस, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट्स इस साल हुआ है करीबन $450 बिलियन। सो 1 ट्रिलियन में कितने बच रहे हैं? 550 बच रहे हैं। हो सकता है अगर हम ये सब एफर्ट्स लगाए तो पॉसिबल है और अगले 2-3 साल में ये मकाम हासिल कर ले आपने। सो एक स्ट्रेटेजी के साथ सरकार भी जा रही है और हम भी उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, राइट। ओके, थोड़ा गौर करते हैं ये एफटीए में है क्या 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 चीजें चल रही हैं करके। सो इंडिया यूएई सीपा बोलते हैं उसको, और यूएई ने देखें यहाँ पे 98% प्रोडक्ट्स कैटेगरीज
पे 0% ड्यूटीज कर दिया। मतलब पहले इंडिया से 100 प्रोडक्ट जाते थे तो 100 प्रोडक्ट पे 5%, 6%, 7%, 10% ड्यूटीज लगती थी। ये एग्रीमेंट करने के बाद यूएई ये बोलती है अब तुम्हारे लिए 98% ऑफ द प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया वी विल हैव इट 0%। अच्छा, आप सोचोगे ये तो यूएई ने कर दिया, हम लोगों ने शायद इससे ज्यादा दे दिया होगा, तो घाटा कर दिया होगा। घाटा नहीं किया। इंडिया ने सामने क्या किया है, या तुम्हारे 100 प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे, पहले 10%, 15% पे आते थे, उसमें से सिर्फ 80% प्रोडक्ट्स जो यूएई से आएंगे उस पे हम ड्यूटी स्लैश करेंगे। सो यहां पे भी हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच समझ के कदम रख रही है कि हम उसमें घाटा ना कर लें, है ना। फिर ये हो गया, ये यहाँ इंपोर्ट सस्ता हो गया तो फिर यहाँ की लोकल इंडस्ट्री वुड गेट सफर्ड। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी कि ये नहीं करना है, ट्रेड ऑफ करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज को नहीं खत्म करना है। दैट इज द आइडिया। ये गुड्स और प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, जहां पे कस्टम क्लियरेंस होता है उसकी बात कर। अब सर्विस की बात करते हैं। सो आउट ऑफ 160 सर्विस जो इंडिया यूएई को बेचती थी या एक्सपोर्ट करती थी, फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग सर्विस, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, या आर्किटेक्ट सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, ये सब सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, राइट। तो ये सब सेक्टर्स उसके अंदर। तो इंडिया हैज ऑफर्ड 100 आउट ऑफ 160 सेक्टर्स, इंडिया ने 100 सेक्टर को ऐसा किया है कि हम आपको कंसेशन देंगे, सब्सिडीज देंगे। उसके सामने यूएई ने 111 टाइप की सर्विस को मोटिवेट किया हुआ है। सो यहां पे भी हम लोग +11 में चल रहे हैं, राइट। इंडिया ओमन एफटीएस वुड बी कंक्लूडेड, जैसे मैंने बताया, विच शैल बी मेड इफेक्टिव बाय 24 सून, एंड अनदर 4 कंट्रीज वुड बी ज्वाइनिंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो ये आप जो डेटा देख रहे हो 21%, 16%, ये सिर्फ यूएई में बढ़ा है। जब बाकी की 5 कंट्रीज में ये करार होगा तो सब में ऐसे 15-20% बढ़ेगा। सो योर टोटल जीसीसी बास्केट विल इंक्रीज। दिस इज द आइडिया। ओके, अब ये हो गया, हमने गल्फ कंट्रीज की बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, हमने ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की थोड़ी बात की, हमने वहां पे इंडियन डायस्पोरा की बात की, क्यों जीसीसी वी शुड फोकस अपॉन आफ्टर नॉर्थ अमेरिका, ईयू एंड थर्ड इज जीसीसी, इज अ सब्सटेंशियल मार्केट फॉर इंडियंस परहैप्स। उसके बाद में बिजनेस प्लान कैसे बनाओगे, एक सिंपल के वे में मैंने यहाँ पे समझाया है। आई नेवर यूज एनी टेक्निकल जार्गन्स। सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, सप्लाई सिलेक्ट करो। जो मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उनको जरूरत है मैं प्रोडक्ट्स कहां से लूंगा। सो डू यू हैव ए नेटवर्क ऑफ फ्यू पीपल हु कैन सप्लाई वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, परहैप्स दैट इज द राइट वे। अदरवाइज कई लोग मुझे पूछते हैं सेशन में कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करूं। यार अमेजॉन पे 1.5 करोड़ प्रोडक्ट लिस्टेड है, कौन से 1.5 करोड़ प्रोडक्ट एनालिसिस करने जाओगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। यू शुड आइडियली गो विद कि तुम अपने सप्लायर्स नेटवर्क में किसी को जानते हो कि तो मुझे स्पाइसेस करना है, ओके वेरी गुड प्रोडक्ट, बल्क में जाएगा, मार्जिन कम मिलेगा। डू यू नो 5 डिफरेंट सप्लायर्स ऑफ स्पाइसेस? मुझे मैंगो करना है, यार 5 मैंगो वाले को जानते हो? नहीं जानते। सो पहले वो नेटवर्क बनाने की कोशिश करो कि तुम्हारे सप्लायर में क्या नेटवर्क है, एंड देन यू सिलेक्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेट फ्यू प्रोडक्ट्स की ये काम के नहीं है, मैं उसमें शायद नहीं चलूंगा। दिस इज हाउ यू आइडियली सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट। सेकंड इज ऑफ कोर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जैसे डीएससी हो गया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो हम लोग एग्जिम बेसिक्स में यहाँ पे समझाते हैं। पेमेंट टर्म्स में कई लोगों ने यहाँ पे आई कैन सी लॉट ऑफ फेसेस हु हैव अटेंडेड फ्यू सेशंस इन पास्ट, तो हम लोग उसके बारे में समझाते हैं कि बैंक अकाउंट कराना है, सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, जीएसटी करा लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लो 500 रुपीज का, आरसीएमसी ले लो, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। केमिकल बेच रहे हो, ऑर्गेनिक केमिकल बेच रहे हो, केमिक्सिल इज योर प्रॉपर बॉडी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से बिलोंग करते हो, फार्माक्सिल इज योर ईपीसी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपेडा, स्पाइसिस बोर्ड, टी बोर्ड। सो ये सब 27 एजेंसीज गवर्नमेंट ने बना के रखी है हम लोगों के लिए टू हेल्प दी एक्सपोर्टर्स, इंफॉर्मेशन मुआयना करती, तो उससे जुड़ जाओ, मेंबर्स बन जाओ, हो सकता है वहां से ट्रेड इंक्वायरी आनी शुरू हो जाए। सो दैट इज द वे आउट। अच्छा, ये मैंडेटरी है? यस इट इज मैंडेटरी, तभी यहां पे लिखा हुआ है। इफ यू आर नॉट मेंबर ऑफ दोज गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड एजेंसीज तो आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो वो करना ही है। खर्चा 10-15 हज़ार, डॉक्यूमेंटेशन 4 होता है, 4 डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए, आपको 4 दिन के अंदर आरसीएमसी मिल जाएगा। एवरी उसको रिन्यू कराना है, वो ऑनलाइन होता है, डीजीएफटी की वेबसाइट से होता है, ठीक है। अनदर इज मार्केट सिलेक्शन। हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं कि 220 कंट्रीज में तुम अपने प्रोडक्ट का मार्केट कैसे ढूंढोगे। 220 में काम ही नहीं करना है, 10-15 कंट्रीज पे फोकस करना है, वहाँ पे बायर्स ढूंढने। तो 3-3 घंटे के 6 घंटे के सेशंस यहाँ पे काफ़ी फैकल्टीज लेती है। एएमए में आओ, जुड़ जाओ, और ये सब चीज़ें ट्रेन योरसेल्फ, जहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग वेबसाइट दिखाते हैं। देयर आर फ्री वेबसाइट्स, नो लॉग इन इज नेसेसरी।
तो वहां से आपको पता चलेगा मेरा मार्केट कौन सा है। आधे लोगों को यही नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट जाता कहाँ है। अच्छा, इंडिया से कितना जाता है, वो कंट्री में अगर जाता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी होती है, तो बेसिक ही नहीं पता अपने को, राइट। गो टू मार्केट प्लान, जहां पे देर आर वेज आप डायरेक्टली सेल करें, चैनल पार्टनर से सेल करें, आप ऑनलाइन करें, देर आर लॉट ऑफ वेज, हाइपर मार्केट से जुड़ जाए, बाइंग एजेंट्स से जुड़ जाए वहां पे कंट्रीज में, देर आर वेज यू कैन सेल एंड अप्रोच दी पर्टिकुलर मार्केट। टेक्नो कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस शुरू करना कर दो। डोंट, हमें हमेशा हर सेशन में कहता हूँ, डोंट यूज योर जीमेल वगैरह, ऑलवेज यूज योर कंपनीज डोमेन, वो वाला यूज करो, अपना पोर्टल वाला ईमेल यूज करो। प्राइस पेमेंट डिलीवरी नेगोशिएशन करना है, इफ सैंपल्स रिक्वायर सैंपल भेजने हैं। कवरिंग फाइनेंशियल रिस्क इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इन द फॉर्म ऑफ ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, वो करना है। अगर आपके पेमेंट टर्म्स उस किस्म के हैं तो पेमेंट रिस्क बहुत रहते हैं, स्पेसिफिकली इन UAE वगैरह की कंट्रीज में काफ़ी लोगों के पैसे डूब चुके हैं, तो वो नहीं करना है। अगर वो क्रेडिट मांग रहा है तो मत करें। DADP करना है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट करें, बट विथ प्रॉपर payment of premium to ECGC, which is a government insurance company which insures your payment if your buyer is not going to pay। अगर वो उड़ गया बंदा और तुमने पैसा नहीं दिए, तो $100 नहीं दिए, तो उसमें से 60 to 90% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू ECGC विल पे, राइट। ये यहाँ पे आश्रम रोड पे इनका ऑफिस होता है, चले जाओ वहाँ पे, एंड यू देर आर 12 to 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एज सच। आपके लिए कौन सी लागू पड़ती है आप देख लें, वो समझाएंगे, एंड दिस इज हाउ यू कवर योर रिस्क। ऐसे ही नहीं ऑर्डर मिल गया बेच दिया, पैसे का कोई ठिकाना नहीं। सो डोंट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स परहैप्स। उसके बाद ये जो सिलेक्ट प्रॉपर CHA, जो कस्टम क्लियरेंस कराएगा, जो तुम्हारा फॉरवर्डिंग एजेंट यहाँ से फ्रॉम वन पॉट टू अनदर पॉट पे लेके जाएगा, टू सिलेक्ट फ्यू स्मार्ट पीपल हु कैन डिलीवर योर गुड्स टू दी एंड यूजर्स, वरना तो ट्रांजिट टाइम 5 के 15 दिन भी होते हैं, वो सब नहीं करना है, राइट। एंड देन लास्ट इज क्लेमिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स, दिस इज बेसिकली एन एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। उसके बाद सेल्स मार्केटिंग प्लान पे आते हैं। पहले एक बिजनेस प्लान बना दिया, अब उसमें थोड़ा माइक्रो पे थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे सेल्स मार्केटिंग प्लान क्या होता है। मुझे बेचना है तो बेचने में जाऊंगा कैसे, मैं किसको करूंगा, कैसे करूंगा, हाउ शुड आई अप्रोच। सो ये तो 3 घंटे का सेशन है, बट परहैप्स इन ए 1 hour वी कैन टेक अ ब्रीफ ऑफ उसका जिस्ट ले सकते हैं क्या है। सो फर्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग, आपने प्रोस्पेक्ट डेटाबेस बना दिया कहीं से, देयर आर वेज 11 वेज विच आई शो इन लॉट ऑफ माई सेशंस, वहाँ पे सिखाता हूँ कि येलो पेजेस हो गया, आपका एम्बेसी हो गया, उन सब चीज़ों, उन सब लोगों से, इंस्टीट्यूशन से जोड़ो, प्रोस्पेक्ट डेटाबेस बनाओ, स्टार्ट सेंडिंग ईमेल, अगेन नॉट फ्रॉम जीमेल, याहू, हॉटमेल वगैरह, ऑलवेज यूज योर कंपनी ईमेल। इफ माई कंपनी इज ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन, माई ईमेल इज ankit@global-business.in, ऑलवेज यूज योर कंपनी। जीमेल की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हारा इंडिया में यहाँ अपने में उसको ये करते हैं, बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड और इट विल गो टू स्पेम। सो डोंट यूज दोज फ्री ईमेल्स फॉर गॉड्स सेक, है ना। 1500 रुपए में पूरे साल में मिलता है, कंपनी का ईमेल लगा लो। एंड डोंट सेंड ईमेल्स फ्रॉम info@xyz.com, export@xyz.com, इट डजंट लुक गुड। यूज योर नेम, पहले तुम हो, पहले तुम जिंदा हुए, उसके बाद तुम्हारी कंपनी का जन्म हुआ। लॉजिकली कंपनी का जन्म तुमको नहीं ये हुआ है, इट इज नॉट अदर वे राउंड। सो ऑलवेज यूज योर नेम। आई ऑलवेज यूज माई नेम, Ankit@global-business। मैं भी इन्फो रख सकता था, नहीं करना है वो, क्योंकि बाहर सामने वाले बायर को 500 ईमेल आएंगे, उसमें से 499 इन्फो में से आएंगे। अब तुमको 500 का बनना है या नहीं बनना है, यू शुड बी जस्ट एनी अदर ईमेल विच विल बी डिलीटेड। सो डोंट डू दैट। मैं ये नहीं कहता कि आप नाम वाला ईमेल यूज करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा या बिजनेस मिल जाएगा, बट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यूइंग दैट ईमेल इंक्रीजेस। दिस इज दी अनुभव है। ओके, सो फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज योर ट्रेड फेयर एग्जीबिशन। जहाँ पे आप ट्रेड फेयर एग्जीबिशन करो उस मुल्क में, जो हम लोग यहाँ पे ये भी सिखाते हैं कि आप कौन से ट्रेड फेयर एग्जीबिशन को सिलेक्ट करोगे, कैसे जाओगे। गो एज ए विजिटर, देन पार्टिसिपेट करें। आप बूथ स्टॉल डायरेक्टली मत रखें, अगर बजट परमिट करता है तो ठीक है, अगर बजट परमिट नहीं करता है तो जस्ट गो एज ए विजिटर। आने जाने का खर्चा, आज दुबई में यहाँ से जाओगे, देयर आर 3 फ्लाइट्स 4 फ्लाइट्स फ्रॉम अहमदाबाद डायरेक्टली, 3 घंटे में पहुंच जाओगे यार। और आने वहाँ पे 4 दिन रहोगे, 50,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है, जो तुम्हारे मनाली से कम है खर्चा। तो मनाली मत जाओ, एक वैकेशन भूल जाओ, यूएई चले जाओ मंडे टू फ्राइडे। अब तो वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, दे फॉलो अमेरिकन फॉर्मेट्स। तो 4-5 दिन में रोज 2-3 लोगों को मिलो, 5 3 15 लोगों से मिल के आओ, 15 लोगों को प्रोडक्ट सैंपल दिखा के आओ, कैटलॉग ब्रोशर दे के आओ, चाय वाय पी के आओ उसके ऑफिस में, उसकी फैक्ट्री देख के आओ। दिस इज हाउ यू बिल्ड अप द रैपो।
परहैप्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विजिट टू जीसीसी। वो बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि काफी कुछ प्लान्स आप बनाते हो, काफी स्ट्रेटेजी बनाते हो, हम लोग जाते नहीं है। यू डोंट कनेक्ट विद पीपल। दिस इज नॉट यूएस, जहां पे यूएस में लोगों का ज्यादा मिलना जुलना नहीं रहता है, ज्यादा सोशल नहीं रहते, वो उनका फॉर्मेट है। देयर इट इज मोस्टली 90% 95% ऑफ बिजनेस इज ऑनलाइन, अमेजोन ईबे से चलता है। बट ये जीसीसी मार्केट ये चाहता है कि आप बंदे से खुद मिलें, आप उनसे खुद बातें करें और रैपो बनाएं। दिस इज अ कल्चर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यूएस का फॉर्मेट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ का फॉर्मेट यूएस नहीं चलेगा। ऑल मार्केट्स बिहेव इन हिज ओन वे परहैप्स, वो हम नहीं समझते। वो ईमेल करते रहते हैं, जाके मिलो वहां पे यूएई में जाके, ओमन में जाके मिलो वहां पे जाके। तो आई बिलीव ओके, आप 3 महीने में ये होमवर्क करके प्रोस्पेक्ट डेटाबेस बना के अपॉइंटमेंट लेके जाना है। ऐसे नहीं घूमने जाना है मैं आ गया हूँ यहाँ पे। दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। आप उसको बोल के जाओ, सर आई एम कमिंग दिस मंथ, आई विल बी कैरिंग फ्यू सैंपल्स, आई विल कैरिंग प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स, आई वी लुक फॉरवर्ड टू कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, अलायंस, सो कैन वी हैव अ ब्रीफ मीटिंग ऑफ हाफ एन आवर एज पर योर कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी। टक करके 3 सेंटेंस का ईमेल डालो, लंबी कहानी नहीं डालना है। लंबी कहानी जब तुम जाओगे तब सुनानी है। अभी सब पिक्चर दिखा दोगे तो मजा नहीं है ना, पहले ट्रेलर दिखाओ ना कल्कि का, फिर मूवी आएगा। दिस हाउ यू साइकोलॉजिकली एंड स्मार्टली बिहेव, नेगोशिएट विद द कस्टमर्स, राइट। ओके, और उसके बाद इनवाइटिंग फॉरेन बार्स, ये भी हो सकता है अगर यूएई के लोग, क्योंकि 38% ऑफ यूएई सिटीजन्स आर इंडियंस, वो आते जाते रहते हैं दिवाली में। सर आ जाओ सर, मोस्ट वेलकम सर, दिवाली के बाद यहाँ पे 2 दिन आ जाओ सर, अहमदाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट है, चेन्नई से, केरल से, कोचीन से, आप आ जाओ यहाँ पे, लुक एट फैक्ट्री, लुक एट अवर प्रोडक्ट्स, यू विल बिलीव मोर देन व्हाट आई से। वो एक सर आई विल बेयर योर ऑल योर एक्सपेंस सर। तुम जाते तो खर्चा करते ना तुम वहाँ पे, ये उल्टा हो गया। तो उसको बोला सर वी आर गोइंग टू पुट यू एट सम रेडिसन ब्लू, वेरी गुड होटल, एंड सर वी सील टू इट, मेरी कार आ जाएगी आपको एयरपोर्ट लेने के लिए, रेडिसन ब्लू में आप चेक इन हो जाओगे, फर्स्ट दिन वहाँ पे रहोगे, दूसरे दिन 10 बजे ड्राइवर आ जाएगा, सब देन ही विल टेक यू टू अवर फैक्ट्री, वी विल हैव इट टुगेदर लंच एट ग्रैंड भगवती। ही विल फील वाओ, यार बंदा क्या है यार, है ना। क्योंकि ये सब जो रीजन है वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए माना जाता था किसी जमाने में। हम लोग वो कल्चर भूल गए। हमारे दिमाग में 24 घंटे 365 बिजनेस दिखता है। अगर ये संभाल लिया, बिजनेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस व्हाट आई बिलीव, है ना। मोस्ट ऑफ जीसीसी में, यूएई में जितने भी बिजनेस होते हैं, या तो वो डिनर टेबल पे होते हैं या वो कैफेटेरिया में होते हैं। हम वो चीज नहीं समझते। हम समझते हैं फोन करके ईमेल से हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। ओके, अनदर इज ग्लोबल मैगजीन सब्सक्रिप्शंस। ये कुछ मुल्कों में, हर एक मुल्क में ये रहता है कि उनकी लोकल एसोसिएशन होता है। जैसे यहाँ पे अपना केमिकल एसोसिएशन है, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एसोसिएशन है। तो ये सब एसोसिएशन उस मुल्क में भी रहते हैं, सऊदी ले ले या फिर वो ले ले, तो वहाँ पे जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप जा नहीं सकते या फिर जाना नहीं चाहते तो वहाँ पे आपको पूरे मेंबर्स के लिस्ट मिल जाएंगे, मेंबर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस किस बिजनेस से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं, इनकी फैक्ट्री कहाँ है, दम्मम में है, रियाद में, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। This is how you get the prospect database, and then you start connecting. So we are also a member of this builders body of Riyadh, sir. How about we meet up someday? This is how you start first touch point. उसके बाद मेंबरशिप विद जो लोकल इंडस्ट्री जो मैंने बात की, वो सेलिंग थ्रू इन्फ्लुएंसर। अगर आपके प्रोडक्ट्स उस किस्म के हैं जो जिसमें आपको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, सो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद दोस इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली। अगर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फार्मास्यूटिकल है तो आप डॉक्टर से कनेक्ट हो जाए, डॉक्टर्स एसोसिएशन से कनेक्ट हो जाए। आपके कोई होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं तो आप कर्टेंस वगैरह, तो आप आर्किटेक्ट से कनेक्ट हो जाए। तो दिस विल पुट यू टू 10 डिफरेंट कस्टमर्स या बायर्स या एंड यूजर्स जो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ 2 या 3 को जानते हो, या 3 या 5 को मिलकर आते हो। ये बंदे आपको 25 लोग दिखाएंगे। सर ये रियाद में मैंने 10 लोगों को जानता हूँ, सर दम्मा में ना मैं करीबन 25 लोगों को जानता हूँ, सर मस्कट में आई नो एटलीस्ट 5-10 गाइज हु आर इनटू दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स। तो चलो सर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। वेरी गुड। दिस हाउ यू बिल्ड अप द ओवरऑल activities. And then of course there are retail giants like Lulu, e-commerce platform, but then e-commerce is not that much okay if your products का किरदार उस किस्म का है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कोई कंप्रेसर्स बेच रहे हैं, कोई पंप्स बेच रहे हैं, तो ये अमेजोन में नहीं बिकेगा यार। वो तुम्हारा डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट के पास जाएगा। हाँ, अगर मैं फूड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं चाय कॉफी बेच रहा हूँ, मैं हैंडीक्राफ्ट बेच रहा हूँ, देन ई कॉमर्स माइट मेक सम सेंस। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम लोग करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, तो वो भी ई कॉमर्स पे जाएगा, या तुम्हारा डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, रिटेलर्स के पास भी जाते हैं चीज़ें। सो ट्राई टू हैव दिस प्लान 1, प्लान 2, प्लान बी, ए बी। अगर ये नहीं चला तो ये हम लोग नहीं सोचते, हम लोग ये हुआ तो यही करेंगे।
वी डोंट हैव दिस थॉट प्रोसेस यार ये नहीं हो तो मैं करूंगा क्या, वहां तो मैंने 50,000 लगा दिए, 4 बार घूम के आया, अभी आगे क्या। सो ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ प्लान बी। ये कुछ वेबसाइट्स है, बिकॉज ऑफ टाइम ये मैं हमेशा देखता हूँ कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स मैं शायद, चलो मैं थोड़ा आपको थोड़ा, सो ऑन योर लेफ्ट इज एक्सपोर्ट्स, ऑन योर राइट इज इंपोर्ट्स। ये मैं हर सेशन में मेरे जो भी कई लोगों ने अटेंड किया है यहाँ पे, दे नो दिस। सो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस ऑप्शन, आई गो विद दिस। यहाँ पे 23, 24 डालें एंड देन यहाँ पे यू नीड टू पुट योर HSN कोड। सो HSN कोड नहीं पता है तो यहाँ पे जाए, सर्च करें, और अगर प्रोडक्ट का नाम पता है तो प्रोडक्ट का नाम डालें। सो यहाँ पे मैं कंप्रेसर डाल रहा हूँ, लेट्स सी मुझे क्या मिलता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स, वन इज रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रू एयर। सो आई विल सिलेक्ट स्क्रू एयर। यहाँ पे आया, फिर से मैंने 23-24 का डेटा सिलेक्ट किया। यू विल हैव 15 ईयर्स पास्ट डेटा 1997 से, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, हमको PhD नहीं करना इस पर, नाइदर वी आर गोइंग टू पब्लिश एनी पेपर्स। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें स्क्रू एयर कंप्रेसर्स, रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, क्वांटिटी छोड़ दें। फिलहाल आप यहाँ पे नीचे आए कि स्क्रू एयर कंप्रेसर्स इंडिया से कितने मुल्क में जाते हैं, तो 103 कंट्रीज में ये जाते हैं। टोटल एक्सपोर्ट 227 करोड़, क्योंकि पीछे 2 चले जाएंगे क्योंकि रुपीज इन लैक्स है। 227 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है स्क्रू एयर कंप्रेसर का लास्ट ईयर। पिछले साल 205 का किया था, सो ने इंक्रीज ऑफ 10%। यूएई देखना, यहाँ पे यूएई मिल जाएगा आपको, देखो यूएई 17 करोड़ हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था 8 करोड़। क्यों बढ़ा है 105%? बिकॉज ऑफ FTA, है ना। यहाँ पे आपको सऊदी भी मिल जाएगा। सऊदी में कहा है, यहाँ पे दिस इज सऊदी। सऊदी अरब में कम हुआ है, 57 CR से लेके 38 CR हुआ है। नाउ यू अंडरस्टैंड द गेम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जानती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं और आज आप लोग जानते हो, ये जानते हैं कि यार यूएई में ये बढ़ा है, सऊदी में तो ना बढ़ा है ना कांस्टेंट रहा है, ये इट हैज गॉन डाउन। सो अगर मेरी एग्रीमेंट यहां पे हो जाती है, वो 5% 10% उस कंप्रेसर, स्क्रू एयर कंप्रेसर सऊदी अरेबिया वाला इंपोर्टर जब इंपोर्ट करेगा और 10% माइनस हो जाएगा, इज लैंडिंग कॉस्ट विल कम डाउन and hence our competitiveness will increase and hence the export to Saudi Arabia will turn around। ये सोच लेके इस सरकार इसके पीछे पड़ती है कि ये कैसे होगा करके। यहाँ पे आपको ओमान भी मिल जाएगा, क्योंकि सब जगह जाता है तो ओमान भी कुछ जाता होगा, ऑल्दो लेस क्वांटिटी में जाता होगा, बट देखते हैं क्या है। JKLMNO, दिस इज ओमान। ये देखो यहाँ पे भी -15 हुआ है। दैट इज द लॉजिक। सरकार को ये पता है, ये डेटा देखती रहती है, क्योंकि सरकार का ही डेटा है कि ये GCC में क्या हो रहा है यार, यूएई में अच्छा हो रहा है, बाकी की 5 कंट्रीज इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। क्या हो रहा है, कंप्रेसर तो वही है, क्वालिटी तो वही है, ग्रेड्स तो वही है, सर्टिफिकेशन तो वही है, कस्टमर बेस तो मोर और लेस सेम है, तो ये क्यों हो रहा है? अगर ये FTA होती तो आलम कुछ और होता। दैट्स द लॉजिक, करेक्ट। सो लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। क्या है आगे देखते हैं। ये देखिए एम्बेसी ऑफ इंडिया कहां पे है, GCC में। कहां पे है, मैंने पूरा लिस्ट दे दिया हुआ है। पहले मैं ये खाली बताऊंगा आपको, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट। ये कैसे काम आपको लगती है, कैसे हमको एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है, उसका मैं बाद में बताता हूं। ये देखें यहाँ पे एम्बेसी ऑफ इंडिया, रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन। ये मैंने नाम के साथ दे दिया है मिस मनुस्मृति, शी इज इकोनॉमिक एंड ट्रेड काउंसिलर। दिस इज मिस रीशा ओबेरॉय, कॉमर्स। मिस्टर प्रवीण कुमार, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स। श्री देवेंद्र पुंज, दीपक पुंडीर, मिस्टर रवि कुमार जैन। ये सब इंडियंस नाम दिख रहे हैं, क्यों है? क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। दिस आर ऑल IAS ऑफिसर्स और IFS ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ने उनको उस मुल्क में डेप्यूट किया है टू हेल्प द एक्सपोर्टर्स। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, बायर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स ऑफ screw air compressors in any of these 6 countries, you just need to put an email across. Sir, मेरा HSN code is this. HSN कोड दिखा दिया मैंने आपको। वहां से 6 डिजिट्स का HSN कोड कॉपी पेस्ट करके ईमेल में डाले, नॉट Gmail, आपका खुद का ईमेल, उसमें डाले कंपनी का ईमेल से, सर वी वांट दिस इन्फॉर्मेशन, कैन यू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ दिस डिटेल्स। सेकंड, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। सेकंड इंफॉर्मेशन, आपको पता नहीं कि उस कंट्री में प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन कौन सा चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फेक्शनरीज जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो हलाल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें हलाल इज नॉट मैंडेटरी, इट इज एडवाइजेबल
इट इज से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर योर बिजनेस, इट मे नॉट बी मैंडेटरी। लेकिन अपने को ही नहीं पता, तुमको यहाँ पे 4 लोगों ने बता दिया ये करना पड़ेगा, नहीं हलाल चाहिए, यू आर इन दैट फियर फैक्टर, ये नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। डोंट आस्क एनी पीपल ओवर हियर, जस्ट सेंड एन ईमेल अक्रॉस, सर माय प्रोडक्ट इज दिस, न्यूट्रास्यूटिकल में सर मैं प्रोटीन पाउडर बेच रहा हूँ और मेरा HSN कोड इज XYZ 6 digits. So is halal certificate is mandatory if I want to export my product from India to UAE? खत्म, वो तुमको 3 दिन में जवाब दे देगा, जो क्लैरिटीज है। अच्छा वो गवर्नमेंट का बंदा है, वो झूठ नहीं बोल पाएगा, अब वो आपको फेक इंफॉर्मेशन देगा नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया का भला चाहता है, हमने ही वहां पे रखा है। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ये एम्बेसी ऑफ इंडिया मुआयना करती है, और इसलिए सब अलग अलग कंट्रीज में एम्बेसीज है। इंडिया की 135 कंट्रीज में एम्बेसीज है ऑन पेपर, 215 कंट्रीज में से 135 कंट्रीज में, राइट, फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना। यूएस की सबसे ज्यादा है, उसके बाद चाइना, एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया एंड अदर कंट्रीज, राइट। अब यहां पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि ये लोग इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं। यू बी अमेज कि यार कुछ करना ही नहीं है, इनको ईमेल करो और इंफॉर्मेशन ले लो। सो लेट मी टेक यू टू वन ऑफ माय क्लाइंट, मिसलेनियस प्री इंडियन फॉर्च्यून। ये देखो एम्बेसी डेटा है, यूएई लिखा है यहाँ पे। देयर आर 5 to 6 डिफरेंट फाइल्स, फूड इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, फूड इंपोर्टर्स एंड होलसेलर्स इन यूएई, मतलब फूड प्रोडक्ट्स के जितने भी इंपोर्टर, जितने भी होलसेलर यूएई में है, तो वो यही है। कितने पेजेस हैं? मुझे तो यहाँ पे 81 पेजेस दिख रहे हैं, विद देयर ईमेल आईडी, विद द कंपनी नेम, विद द फोन नंबर, पर फैक्स नंबर एज वेल। फैक्स की कोई जरूरत होता नहीं, कोई आजकल जमाने में यूज नहीं करता है, बट देन यहाँ पे ईमेल लिखे हैं, देखो अल हथबूर। अब ये कहां से मिलेगा मुझे? anwahi@emirates.net.ae, alhada1emirates.net.ae, info@aldawri। 81 पेजेस हैं, मैंने खुद इसको यूज नहीं किया, तो उतना वक्त नहीं है। ये आप करो, ये 6 महीने यही करते रहोगे। इट इज इंपॉर्टेंट, करो, इसमें ढूंढना पड़ेगा। अभी ये अल उम्दा फूड स्टफ्स है, वेदर इट एग्जिस्ट ऑन दी वेबसाइट है तो देख लो, आपके प्रोडक्ट से ताल्लुकात रखते हैं तो देख लो, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी करके देख लो कि भाई मेरा ये इंट्रोडक्टरी मेल है, मेरा ये ब्रोशर है। ऑलवेज सेंड ब्रोशर विच इज लेस देन 2 MB। हम लोग क्या करते हैं, 36 MB का फाइल बना के भेजते हैं, अंकित भाई नहीं हो, वो नहीं पड़ेगा भाई, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठा है, वो 2 MB 3 MB से तुम्हारा कुछ जाने वाला है नहीं, उसके नीचे ही तुमको कंप्रेस करके भेजना है। सो रिड्यूस योर फाइल एंड देन सेंड इट अक्रॉस, दिस इज अ वे आउट। ये एम्बेसी डेटा, अच्छा मैंने सिर्फ ये एक फाइल दिखाई है, आई एम गोइंग टू शो रैंडमली अनदर फाइल। सुपरमार्केट्स, जितने भी सुपरमार्केट्स, जितने भी हाइपर मार्केट्स यूएई में है, वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। कितने पेजेस हैं? 34 पेजेस। कहाँ ढूंढने जाओगे ये? किससे लोगे ये? फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल पेनी, जस्ट एन ईमेल टू एम्बेसी ऑफ इंडिया। उस लेडी को मैंने किया यूएई में जो बैठी है अबू धाबी में, मैम आई वांट दिस इंफॉर्मेशन, आई वांट टू एक्सपोर्ट माई प्रोडक्ट्स टू दिस। 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस से ज्यादा नहीं ईमेल करना है, आपकी कंपनी का पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, क्योंकि वो एम्बेसी को क्या लेना है ना, तुम ISO नहीं हो, वो बायर पूछेगा, एम्बेसी वोंट आस्क। सो राइट दैट प्रॉपर काइंड ऑफ ईमेल। वो हमारे सेशंस में हम लोग बताते हैं, फैकल्टी समझाती है कि एम्बेसी को ईमेल कैसे करोगे, बायर को ईमेल कैसे करोगे, वेज एंड मीन्स टू डू, ठीक है। सो एम्बेसी का ये है, इसलिए मैंने एम्बेसी का लिस्ट आपको दे दिया है, ताकि आपको गूगल में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं अंकित किसको ईमेल करूं, ये इसी को ईमेल करो। इसका ईमेल भी है, इसका नाम भी है, एड्रेस विद द प्रॉपर नेम, मिस रीचा ओबेरॉय, अबू धाबी यूएई। जो भी मुल्क है, उस मुल्क का जो कैपिटल है वहीं पे इंडियन एम्बेसी है। कभी कभी उसका इंडियन एम्बेसी बोलते हैं, कभी कभी उसको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये रैंडमली होते रहते हैं, बट ऑल दिस एजेंसीज बेसिकली आर देयर टू प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन, करेक्ट। कभी कभी हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको मिलेगा, लेकिन तो अंकित ने तो एम्बेसी बोला था, यहाँ तो हाई वो कमीशन ऑफ इंडिया निकला, वो तो अलग इंफॉर्मेशन है। ये नहीं, एक ही है, लॉट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे लिए है, करेक्ट।
चैलेंजेस क्या है मोटा मोटा थोड़ा देखते हैं, वी विल टेक 5 मिनट्स ऑन दिस। इजराइल हमास का जो भी चल रहा है, रेड सी क्राइसिस, वी ऑल नो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेटा के साथ मेंशन किया है, मैंने बीच में कहीं पे बीबीसी गुजराती में मेरा कोई इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, मैंने उनको इंटरव्यू दिया, तो ये सब डेटा मैंने उनको दिया था कि द कॉन्फ्लिक्ट शिपिंग कॉस्ट हैज गॉन अप बाय 40 to 60%। इसलिए आपको $750 का दिखा रहा हूँ, जो पहले 450 था, और उसके पहले $300 में जाता था 40 फीट कंटेनर फ्रॉम मुंद्रा टू जेबल अली, विच इज नाउ $700। इसलिए 50-60% शूट हो गया है बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस, क्योंकि वहां से नहीं गुजरता है वो कंटेनर, पूरा अफ्रीका का घूम के जाता है, विच टेक 12 days मोर कंपेयर टू। सो ये मिडिल ईस्ट अफ्रीका में अभी ये चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और इसकी वजह से रीराउटिंग की वजह 20 days एक्सेस हो रहा है, एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट हैज गॉन बाय 15 to 20%। क्योंकि पता नहीं तुम्हारा कंटेनर गुजर रहा है, हाँ हाउदीज ने कहां से ड्रोन से अटैक कर दिया, तुम्हारा पूरा शिप खत्म हो गया। और जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कई लोगों को पता है जो सेशंस में आते रहते हैं, अगर एक बड़ा वेसल है मर्स्क का, जिसको हम टेक्निकली मदर वेसल बोलते हैं, उस वेसल में करीबन 25,000 20 फीट के कंटेनर्स जाते हैं। तुम्हारा मेरा सिर्फ उसमें एक कंटेनर है, सच ए ह्यूज जहाज वो लेके चलता है, वो ड्रोन ऊपर से आएगा, वो किसी का भी कंटेनर तबाह कर सकता है, राइट। ओके, सो पेमेंट रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क रहता है, क्योंकि हम लोग ये सुनते रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ये आता है हमारे समझ में कि फ्रॉड हो गया, या पैसे मेरे नहीं आए, वो बंदा नहीं था करके, तो उसका क्या करने का। तो सिक्योरिटी पेमेंट में यहाँ पे 5-6 पेमेंट टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स के सेशंस यहाँ पे चलते रहते हैं, फैकल्टीज काफ़ी हैं यहाँ पे एमए में, और 3-3 घंटे के सेशंस होते हैं, यू कैन अटेंड एनी ऑफ दोस प्रोग्राम्स। सो एक तो 100% एडवांस हो गया, जहाँ पे आपका पेरिशेबल किस्म का प्रोडक्ट्स है, जहां पे लो इनवॉइस वैल्यू है। अब तुम्हारा $20,000 है, यू कैन नॉट आस्क एडवांस पेमेंट, हाँ, लेकिन तुम्हारा $1,500 है तो यू कैन आस्क, छोटा सा पेमेंट है, कर दो ना सर मेरे को, राइट। अगर हाई एंड प्रोडक्ट्स लाइक हैंडीक्राफ्ट, झरोखा कुछ बेच रहे हो, या फिर संखेड़ा का फर्नीचर कुछ बेच रहे हो, हाई एंड प्रोडक्ट्स, जोधपुर का कुछ तुम बेच रहे हो वहां से लाके, राइट, वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम किस्म की चीज है, तो देन यू शुड डिमांड कि यार ये इंडिया के अलावा तुमको कहीं नहीं मिलना है। फॉर एग्जाम्पल रग्स, जो मैं काफ़ी एग्जाम्पल देता हूँ, रग्स जो होते हैं वो पूरे जहाँ में सिर्फ 2 ही लोग बनाते हैं, 1 आर वीवर्स फ्रॉम वाराणसी एंड देन अफगानी रेफ्यूजीज। ये 2 के पास ही वो स्किल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट है जिससे वो बनाते हैं, बाकी दुनिया में ये कहीं पे भी नहीं मिलता। और ये रग्स कहाँ पे यूज होता है, इट कैन बी यूज ओनली एट द प्रीमियम प्रीमाइसिस। व्हाइट हाउस में है रग्स, इसकी लाइफ कितनी रहती है, हजारों साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। तो अगर तुम ये बेच रहे हो तो भी क्रेडिट में नहीं बेचना हो, तुम वो प्रोडक्ट का भी गला दबा रहे हो, तो नहीं करना है चीज़। प्रोडक्ट के किरदार को समझो कि क्या मैं बेच रहा हूँ। पेरिशेबल गुड्स, बनानास बेच रहे हो, मैंगोस बेच रहे हो, जिसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन है, तुम क्रेडिट देके बैठे हो 20 दिन, भाई वो बनाना केला खा जाएगा, मैंगो खा जाएगा, तुम्हारा पैसा 20 दिन के बाद नहीं देगा वो। तो वो सब में मत पड़ो। वेन एवर इट योर प्रोडक्ट का किरदार इज ऑफ पेरिशेबल, जिसकी लाइफ बहुत शेल्फ लाइफ कम है, ऑलवेज गो फॉर एडवांस अपफ्रंट। अपफ्रंट मेहनत करनी पड़ेगी, अपफ्रंट मांगते मत, ऐसे ही अपफ्रंट नहीं आएगा। ओके, देन 30% एडवांस है, नॉर्मली 70% वन गुड्स आर रेडी, और अगेन बिल ऑफ लेडिंग। अनदर इज लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट, जो हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। एस्क्रो सर्विस काफी पुराना है, लेकिन लोगों को नहीं पता एस्क्रो सर्विस क्या है। आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल, बट एलसी में अगर 4 पार्टीज होती हैं, एस्क्रो में देयर आर ओनली 3 पार्टीज, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड एस्क्रो प्रोवाइडिंग एजेंसी। नाउ दिस एजेंसी कैन बी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल, एनबीएफसीज, प्राइवेट एजेंसीज। एस्क्रो इंडिया करके है, आईसीआईसी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विस, जहां पे आपके एलसी से कॉस्ट कम हो जाएंगे और एलसी के हैजल्स से मुक्त हो जाओगे, राइट, एंड पेमेंट इज गारंटेड अगेन। सो इसमें आप जा सकते हो। अनदर इज इसी जैसी जो मैंने बताया आपको, अगर डीएडीबी में करना है, क्रेडिट देना ही है, वो बंदे को 5 दिन का 10 दिन का क्रेडिट देना है, 15 दिन का देना है नॉमिनल क्रेडिट, तो गो फॉर ईसीजीसी, ऑलवेज पे प्रीमियम, इंश्योर योर पेमेंट्स। अगर वो नहीं देगा, वो एजेंसी तुमको देगी 60 to 90%। पेमेंट आने में कितना वक्त लगेगा, नॉर्मली ऑन देयर वेबसाइट दे हैव मेंशन्ड 4 months, बट प्रैक्टिकली इट टेक्स 5 to 6 months, क्योंकि वो एक प्रोसीजर होती है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते, तुमने जो करस्पॉन्डेंस की है वो बताने पड़ते हैं ईसीजीसी को कि सर ये मैंने बेचा है, इसके पैसे नहीं आए, मैंने इतने फॉलोअप्स किया है, सर आई नीड योर हेल्प, क्योंकि मैंने पेमेंट प्रीमियम का टाइम पे किया है, तो मुझे ये चाहिए, राइट। एंड देन दे विल डिसाइड कि ये उसको कितने % में वापस करूं। $100 का माल गया है, तो वो समझेंगे कि हैंडीक्राफ्ट जैसी आइटम है, फर्नीचर जैसी आइटम है, तो 30% इज प्रॉफिट मार्जिन, तो 70% इज योर कॉस्ट। तो आउट ऑफ 70 दे विल पे यू मोटा मोटा 60-65। इसलिए वो लिख के देते हैं बिटवीन 60 to 90% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू। एवरीथिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस हैज लॉजिक, वो ऐसे ही नहीं वहां पे कुछ घूम रहा है या चल रहा है, राइट।
ओके, एंड ऑफ कोर्स नेवर ऑफर गुड्स ऑन ओपन क्रेडिट कि यार पेएबल वेनेबल, जब मैं पे करना चाहूंगा तब पे करूंगा, उस पे नहीं जाना है. एंड देन कंसाइनमेंट, बिकॉज कंसाइनमेंट इज नॉट ए सेल टेक्निकली. वो तुम जस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर रहे हो. 20 फीट का कंटेनर बेच दोगे यूएई में, वो तुमको पैसा कब देगा? जब 20 फीट का कंटेनर का मटेरियल बेचेगा, उसके बाद इट मे टेक 1 मंथ, इट मे टेक 1 ईयर. तो वो जंजाल में मत पड़े. लेट इट बी वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन. बिजनेस करना है तो इस हिसाब से करना है, वरना डोमेस्टिक में खुश है यार. एटलीस्ट बंदा पैसा नहीं दे, उसके घर पे जाकर तो बैठ सकते हैं. ऑफिस में जाकर तो बैठ पाओगे कि शर्मा जी पैसे दो? वहां कहां जाओगे, राइट? द वे फॉरवर्ड, ये देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है. जो भी करंट क्राइसिस जो चल रही है, रेड सी क्राइसिस के उसको नज़र में रखते मैंने समझाया है कि यार जब ये IME हो जाएगा कॉरिडोर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो यूरोप पहुंचते पहुंचते ये 11 दिन में पहुंच जाएगा. जो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर ये है, सुएज कैनाल से होके जाता है, तो किलोमीटर यहाँ पे 7,500 किलोमीटर है, यहाँ पे 6,500 किलोमीटर हो जाएंगे. सो 1,000 किलोमीटर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा 5, एंड देन ट्रांजिट टाइम के अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगा. सो योर टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विच इज करंटली जो भी अभी है उससे काफी कम हो जाएगा. दिस इज ऑफ कोर्स ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन. ये कब होगा वी डोंट नो, बट दिस इज गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, ये गवर्नमेंट के जहन में. दिस इज वन. अनदर इज to develop and to actively use चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, क्योंकि अभी जो जाते हैं वो आपका पाकिस्तान होके जाते हैं. जब चाबहार पोर्ट हो जाएगा, मुंद्रा से पाकिस्तान को बाईपास होके चाबहार पोर्ट ईरान, एंड देन ईरान विल परहैप्स कनेक्ट द ऑल अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, CIS कंट्रीज को कवर करेगा, सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज को कवर करेगा. अभी वहां पे इसलिए नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफी है. पहले जेबल अली से होके जाता था, और अब अगर ये हो जाता है चाबहार पोर्ट ईरान वाला, तो देन परहैप्स इट कैन चेंज द ओवरऑल पोजीशनिंग ऑफ इंडिया इन द सब कॉन्टिनेंट वगैरह ये सब कंट्रीज में. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड फाइन. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thanks. Thank you, everybody. Thank you, Ankit bhai. It was very nice deliberations. You really took us to the UAE and other countries of GCC countries. Thank you very much to Ankit bhai. Thank you all of you for coming here in such a big group and understanding the Ankit bhai's lectures as well as your interest. I thank you. I thank all the staff of the Ahmedabad Management Association for organizing such a nice thing. Thank you everybody.